संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो कल भी हंगामे की वजह से नहीं चल सकी थी संसद। आज कार्यवाही के दौरान क्या कुछ देखने को मिलता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल देखिए, दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो आज शीतकालीन सत्र का 13वां दिन। विशाल दादा प्रकाश बाबू पाटिल। माननीय मंत्री जी के पटल पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, for the mic, is it working? Working. Sir, so the METI AI experts say that almost 97 million new AI jobs are projected to be created by 2025, and 85 million jobs are projected to be replacing the conventional jobs. The economic survey also talks about 78.5 lakh non-farm jobs need to be created till 2030. However, Future Skills Prime has only 3.37 lakh candidates having completed their courses when you had a target of 18.56. At this rate, how does the government strategize to match the quantum of fulfilling the future need of these jobs? Honorable Speaker, sir, Honorable Member has raised questions basically about the entire AI landscape which is emerging. I would like to give a little bit of background to this question, sir. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes in democratizing technology. We have seen how some of the Congress leaders used to treat technology. They used to feel that technology cannot be used by the poor people. But in our case, Honorable Prime Minister has got the technology right into the hands of the poorest of the poor. And same is the case with the AI mission. So a very comprehensive India AI mission has been started, Honorable Speaker, sir, which has 7 pillars. And all these 7 pillars are very well thought through. The first pillar is creating AI compute facility. Second pillar is creating a skill framework. Third is to create startup financing. Fourth pillar is creating an innovation center. Fifth is about datasets platform, and the seventh platform is about creating new applications. And the last platform is about having a safe and trusted AI. The Honorable MP has raised the question, how many people have got enrolled in the Future Skills. As on today, 8.6 lakh candidates have enrolled in AI in the Future Skills platform. And this is again a platform which has been created in collaboration with the industry. So the training which is given is very relevant to what the industry today needs. No, I think you're missing the question, because प्रश्न यही है कि 9.5 करोड़ 8.5 करोड़ की बात कर रहे हैं और आप 3 लाख ही साल का ट्रेन कर पाए हैं। तो वही है कि is it not sufficient, and therefore what is your plan? Anyway, that's a question, please. Or thank you for running the House run today, because yesterday also question asked, we were trying to run and clearly BJP was disrupting yesterday. But 27 डेटा लैब जो आप बनाए हैं, क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ, ठीक है, वही 27 डेटा लैब का पूछ रहे हैं सर कि ये जो डेटा लैब आप बना रहे हैं, कि ये आपका क्या प्रावधान है कि मेरे सांगली जैसे छोटे शहरों में भी यू विल ब्रिंग इन दिस डेटा लैब्स एंड मे बी बेनिफिट, क्योंकि आज किसानों को भी एआई की जरूरत है, उनको स्किलिंग करने की जरूरत है, खेती के लिए हो, अपने मार्केट्स के लिए हो, बाजार के लिए हो, उनको भी स्किल करने का कोई आपका प्रयोजन है, और है तो कब से? माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का मिशन हाथ में लिया है, और इसीलिए जो एआई डेटा लैब्स बन रही है, ये भी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में बन रही है। अगर आप देखो, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, एक तरीके से पूरी लिस्ट पूरे आंसर में आपको दी गई है। अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर भी रखी गई है। कोशिश ये है कि देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में स्टार्टअप्स हो, एआई लैब्स हो, 5G लैब्स हो, सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हो, वो सारे के सारे एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं रह के देश भर में फैले। सदस्य को उक्त समिति का सदस्य
होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, I have received 5 notices under Rule 267. The notice of Dr. John Brittas Honorable Minister. सर We should मैं आपके we should create an atmosphere so that the house can proceed. Shri Kiran Rijiju ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। 72 साल, मेरा बात सुन ले जाए। I'm aware of it. ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी मैं ये नहीं को कह सकता मर्डर आप करने किसको वाले बचा आप रहे लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का नाम Honorable जिक्र करने Minister, का कोई अधिकार नहीं and then है। I'll come to the deputy leader. सर I'll come to the deputy leader after Honorable सर, Minister. भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं। इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे। और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना
चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं, और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे। और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए, और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग, सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम आपस करना चाहते हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से संविधान के हत्यारे हैं। तो देखिए, राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कड़ी निंदा जाहिर की गई किरण रिजिजू की तरफ से। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में हंगामा जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भी हंगामा देखने को मिला। अब इसी के मद्देनजर राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।